Welcome to Small Stop Loss KD. I am Kunal Singh Dhaka. Let's talk about price action today. प्राइस एक्शन के बारे में आपने ये सुना ही होगा कि प्राइस एक्शन मतलब एक्शन डन बाय प्राइस. सो यू हैव टू फोकस ऑन प्राइस. If you apply indicators, then that is not going to be considered as price action. But the irony is, the price action strategies taught by the so-called price action experts are not close to the real price action. प्राइस एक्शन की काफ़ी स्ट्रेटजीज आपने देखी होंगी. उनमें से कुछ स्ट्रेटजीज पे नज़र डालने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर दो लाइनों में प्राइस एक्शन को समझते हैं. प्राइस एक्शन इज द एक्शन डन बाय प्राइस. दैट मीन्स प्राइस मूवमेंट. And price movement is the dynamic thing. It means action shown by price will always be dynamic. Dynamic means ever changing, जो बदलता रहेगा. Therefore, price action cannot be traded on fixed set of rules or strategies. Example, जैसे कुछ लोग आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के नाम पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे बाय या सेल करने की एडवाइस देंगे. And if you are going to buy and sell on opening range breakout breakdown, then you are ignoring the inherent nature of price movement, that is dynamism. और आप प्राइस मूवमेंट का इनहेरेंट नेचर जो कि डायनामिज्म है उसको इग्नोर करके प्राइस मूवमेंट को एक सेट ऑफ रूल से बांध दे रहे हैं, जो कि इस केस में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है. बट प्राइस का नेचर क्या है? बदलते रहना. सो हियर we can simply conclude that inherent nature of the price is dynamism, which is in contradiction with any strategy having fixed set of rules. और इसी कॉमन अंडरस्टूड कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ही ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की ओवरऑल परफॉर्मेंस लो है. नाउ कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्राइस एक्शन बिलीवर्स. ये वो ट्रेडर्स हैं जो सभी इंडिकेटर से तहे दिल से नफरत करते हैं, और कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर कोई इंडिकेटर यूज कर ले तो उसको प्राइस एक्शन बिरादरी से बाहर मानने लग जाते हैं. दे आर सो एडमेंट एंड एंटाइटल्ड ऑफ देयर सो कॉल्ड टैग्स प्राइस एक्शन ट्रेडर. बट द आयरनी ऑफ देम इज वो भले ही कोई इंडिकेटर यूज ना करें, लेकिन दे थिंक दैट इंडिकेटर के अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस इंडिकेटर यूज नहीं करना. सो दे यूज वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न्स such as bearish engulfing, doji, 3 black crow, morning star, evening star, etc. First of all, remembering all these candlestick patterns is a tedious task in itself. Do not worry, I will make candlestick patterns easier in my upcoming video. And secondly, different candlestick patterns will keep forming at different points in different time frame just to confuse you and make your strategy complex. And the other subtype of this second category of price action trader is the ones who use various trend lines and triangle type patterns, etc. Here, they think that they are price action trader because they are not using any indicator, but they are applying various tools on the price. According to them, they are applying it on price. Therefore, they are price action traders. But they turned their eye to the concept that indicators are also applied on the price. They also form on the basis of price movement. Therefore, according to them, indicators वाले भैया लोग भी price action traders हैं. चलो अब trend lines and triangle type patterns की खूबी पर बात कर लेते हैं. Even these traders themselves do not trust the breakout of their strategies and keep doubting their breakouts due to VIX, so-called VIX. If anyone is a price action trader, there should be no space of doubt. There needs to be a clear observation and clear conclusion. If price crosses, suppose if price crosses level X, it is buy. Then there is no space of doubt that price has reversed after breaching point X, price didn't hold above point X, and various n number of illogical justifications. No space of any type of doubt. और अगर आप अपनी ट्रेड्स लेते वक्त लाइव मार्केट में ऐसे करेंगे, या तो आप एंट्री ले नहीं पाएंगे,
या फिर जब आपकी एंट्री कंफर्म होगी तब तक प्राइस ऑलरेडी इतना बढ़ चुका होगा कि आप एंट्री ही नहीं ले पाओगे। तो आपको अपने ट्रेंड लाइन और ट्रायंगल टाइप पैटर्न्स पर भरोसा ही नहीं है और ये विक वाले डाउट आपको रखने ही हैं, तो बेशक आप इंडिकेटर्स यूज कर लो या ट्रायंगल पैटर्न्स यूज कर लो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू टाइप्स। नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ द प्राइस एक्शन बिलीवर्स। They think themselves as super psychologists and portray themselves as the experts who read traders' behavior. जैसे सपोज निफ्टी 2 दिन लगातार गिर चुकी है, तो दे विल ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड ट्रेडर्स बिहेवियर कि अब ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं। सेल पोजीशन को बुक कर लेंगे क्योंकि लगातार 2 दिन मार्केट गिर चुकी है, या निफ्टी कंटिन्यूस 2 दिन गिर चुकी है तो अब ट्रेडर सोचेंगे अब तो निफ्टी बहुत वीक हो गई है एंड और गिरेगी, तो सेलर अपनी सेल पोजीशन होल्ड लेकर जाएंगे। या फिर मार्केट 2 दिन लगातार गिरी है तो ट्रेडर्स रिट्रेसमेंट होने के डर से पोजीशन बुक करके जाएंगे। इस तरीके से एन नंबर ऑफ ओपिनियंस आप सोच सकते हैं, बट द बिहेवियर रीडिंग इज नथिंग बट ओनली अ बायस्डनेस। व्हाट इज बायस्डनेस? Biasness is nothing but a firm belief towards one side. अगर आप ये मान रहे हैं कि मार्केट सेल होगी तो आप अपने सेल को जस्टिफाई करने के लिए बिहेवियर रीडिंग की आड़ में वही बिहेवियर रीड करेंगे जो मार्केट को सेल बता रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज प्राइस के हर टिक पे बाय या सेल दोनों जस्टिफाइबल होता है। बस बात इतनी सी है कि आप किसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। Therefore, behavior reading is very dangerous due to the human weakness, that is biasness. और जहाँ कहीं भी अगर हम biased हैं तो हम rational नहीं हैं। Rational means we are not logical. We are not making decisions on the basis of logical, reasonable, objective reasons. Now the another category of price action believers. यहाँ मैं उन believers की बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट्स की स्टडी को प्राइस एक्शन समझते हैं। प्राइस पॉइंट एग्जाम्पल, इफ 14,200 was important in Nifty in the past, it will remain important. No, not at all. Why? There was some price action in the past which coincidentally made 14,200 important in those market conditions. What does it mean? It means उन मार्केट कंडीशंस में प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट लेवल स्पॉट हुआ और जब हमने उस लेवल का रेट देखा तो वो 14,200 निकला। कभी फ्यूचर में उसी तरह की मार्केट कंडीशन एंड प्राइस एक्शन में वैसे ही एक इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा तो वो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और उस लेवल का प्राइस कुछ भी हो सकता है। 14,200, 14,500, 13,900 कुछ भी हो सकता है। Okay. So you have to focus on price action and not on price point. तो अब गोल्ड के बारे में बात करते हैं। एक गोल्ड में ट्रेड लिया मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर 31 मार्च की तारीख है और गोल्ड के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे चार्ट पे ना कोई वॉल्यूम है, ना कोई इंडिकेटर है, ना मैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाला हूँ, ना ही मैं कोई ट्रेंड लाइन लगाने वाला हूँ, ना ही कोई मैं ट्रायंगल पैटर्न लगाने वाला हूँ या किसी भी तरीके का पैटर्न लगाने वाला हूँ। आई विल ओनली एंड ओनली फोकस ऑन द रियल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मीन्स एक्शन डन बाय प्राइस, जो कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता जाता है। आपको ये पता होना चाहिए फिर कि मार्केट कंडीशन सेम कब है। तो जैसे मुझे पता था एक पर्टिकुलर टाइप की मार्केट कंडीशन 31 मार्च को है और यहाँ का जो प्राइस एक्शन जो दिखाएगा, जो यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाएगा, जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाने वाला है, वही प्राइस एक्शन अगर इन्हीं सेम मार्केट कंडीशंस में दिखाएगा तो मैं वही सेम करूँगा जो यहाँ पे प्राइस ने दिखाया है, क्योंकि प्राइस एक्शन का मतलब तो सिंपली वही है ना कि जो प्राइस ने किया वही आपको करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 31 मार्च की, गोल्ड गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाता है
और जो उससे पहले वाले दिन क्लोजिंग होने से पहले जो कि हाई की रेंज थी उसको एक बार चेंज कर देता है। एक बार चेंज करने के बाद वो वापस गिर जाता है, ठीक है, इट फेल डाउन। बट उसके बाद जहाँ से वो गिरा उस लेवल को ये ब्रीच कर देता है। उसके बाद एक रिकवरी कैंडल बनाता है ये वाली, एंड उसके बाद इस लेवल को ब्रीच करने के बाद प्राइस रुकता ही नहीं, प्राइस डायरेक्ट अप जाता है। उसके बाद भी प्राइस यहाँ से ऐसे अप जाता है, तो प्राइस 44,400 से 45,500 पहुँच जाता है, तो लगभग 1000 पॉइंट बन जाते हैं। तो हमें तो नहीं मिले, बट कोई बात नहीं, पर हमें मिलेंगे ज़रूर। तो जो भी यहाँ पर मार्केट कंडीशंस थी उन्हीं सेम मार्केट कंडीशंस का वेट करना है और इसी प्राइस एक्शन पर यही सेम ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पर क्या था, जो भी लास्ट पीरियड का हाई था ना वो एक ही बार ब्रीच होके गिर गया। फिर उसके बाद जब ये लेवल यहाँ पर क्रॉस हुआ उसके बाद ये एक रिकवरी दी, तो जो यहाँ पे रिकवरी दी उसके बाद इस लेवल को ब्रीच करने के बाद वो प्राइस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और प्राइस अप हुआ। तो यही सेम चीज़ हमें करनी है कि यहाँ पर इस ब्रीच करने के बाद इस लेवल को ब्रीच नहीं किया। तो अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं 5 अप्रैल को आ जाते हैं, हमारा न्यू डे शुरू होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, डेट है 5 अप्रैल, ये डे स्टार्ट है, प्राइस थोड़ा गैप डाउन हुआ और उसके बाद जो भी उससे पहले वाले दिन का क्लोजिंग टाइम से पहले हाई था उसको एक बार ब्रीच करता है और प्राइस उसके बाद गिर जाता है। उसके बाद जो ये पर्टिकुलर लेवल था इसको यहाँ पर ब्रीच कर देता है, उसके बाद एक रिकवरी देता है और इस रिकवरी के बाद जब ये लेवल क्रॉस करने वाला है उस पर हमें बाय करना है। क्यों बाय करना है? प्राइस एक्शन ने वही तो बताया था अभी, और वही प्राइस एक्शन हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें बाय कर लेना है और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना है। उसके बाद प्राइस नीचे आया बट हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो प्राइस यहाँ से राइज, थोड़ा सा डाउन, फिर अगेन राइज। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एंट्री होती यहाँ पर 45,472 के पास और प्राइस ने हाई बनाया 46,420, ओवरऑल 1000 पॉइंट्स, सिंपली 1000 पॉइंट्स प्रॉफिट इन गोल्ड। अब आप ये सोचेंगे कि ये मैं तो हिस्टोरिकल चार्ट पे जाकर बता रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल चार्ट पर नहीं बता रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने लाइव अपने ट्रेनीज़ के साथ शेयर किया है उन्हें सिखाने के लिए, और सेकेंडली ये ट्रेड मैंने खुद लिया है। प्रूफ के लिए अभी मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल देता हूँ जो कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर की थी। यार तेरा भरी हुई बंदूक नहीं, यार तेरा भरी हुई बंदूक नहीं, इक्को गोली नाल जेड़ा खून लैंदा चूस नहीं। यार तेरा चाउण वाले अगे मेरे, लाउण वाले पिछे मेरे, ओ भी अगे पिछे जेड़े कद दे जलूस। यार तेरा भरी हुई बंदूक नहीं, यार तेरा भरी हुई बंदूक नहीं, इक्को गोली नाल जेड़ा खून लैंदा। ओके, तो अब ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें एडवांस में शेयर की गई, लाइव ट्रेड लिया गया, और ट्रेड लेने के लिए मैंने ना कोई इंडिकेटर यूज़ किया, ना मैंने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, ना मैंने कोई ट्रेंड लाइन लगाई, ना मैंने कोई ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ना मैंने कोई बिहेवियर रीड करने की कोशिश की कि यहाँ पर बायर हैवी हो रहे हैं, यहाँ पर सेलर हैवी हो रहे हैं, ना मैंने कोई विक का डर देखा कि भाई प्राइस क्रॉस होकर लेवल पे होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो किया गया विदाउट एनी डाउट। तो कमाने के लिए सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं है, सही सीखना ज़रूरी है। तो सीखो, बट सही सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।